Hi everyone, this is Anukriti from Easing Law. Today I have brought JIGL amendments December 2024 before you. So basically exams बहुत पास में आ रहे हैं and amendments cover करना is little difficult. So through this video I have tried to cover the major amendments in subject JIGL. So let's go ahead with the amendments. Basically अगर आप देखेंगे तो JIGL में amendments जो है ना वो सारे case laws में ही है, मतलब जो भी new case laws आए हैं in from year 2022 to 2024 ये सारे covered है. कुछ अगर आपने पढ़े होंगे तो मॉड्यूल में भी शायद हो सकते हैं. तो मैंने मेजर केस लॉज कवर किए जिसमें से क्वेश्चंस आने के मेजॉरिटी चांसेस है. सो लेट्स गो अहेड. The first case law is Satendra Kumar Antil versus CBI. So here the guidelines were laid down in CRPC stating that the bail is the rule and jail is the exception. इसका बेसिक मतलब ये है कि बेल ना हर केस में मिल सकती है और जेल सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में मिल सकता है. Say for if you would have studied that death sentence is to be granted only in rarest of the rare case. बाकी जगह कहाँ क्या मिलता है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि जेल इज द एक्सेप्शन एंड बेल इज द बेसिक रूल. तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन करी गई है. पहली गाइडलाइन ये कहती है अ सेपरेट एनेक्टमेंट इन द नेचर ऑफ बेल एक्ट इज टू बी स्ट्रीमलाइंड. दैट इज कोर्ट ये बोल रहा है पार्लियामेंट को दैट अ सेपरेट बेल एक्ट शुड बी एनेक्टेड जिसमें सारे प्रोविजंस दिए हुए हो कि बेल कैसे देनी है, कब देनी है, कितने दिन में देनी है, सॉर्ट ऑफ दैट थिंग. Now let's come to second point which says that the investigating agencies and their officers are duly bound to comply with the mandate of section 41 and 41A of the code. 41 and 41A of the code comply होना चाहिए जब भी किसी भी ऑफिसर को बेल देनी है. 41 and 41A of the code that is of CRPC. Let's come to third point which says that there need not be any insistence of bail application while the application is under section 88, 170, 204 and 209. तो ये कहता है इंसिस्टेंस का मतलब रहता है डिले या फोर्स नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली वो ये कह रहा है कि किसी भी बेल एप्लीकेशन में आप किसी को इंसिस्ट नहीं करेंगे, आप कोर्ट के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आपको बेल देनी ही है. If the application has been filed under section 88, 170, 204 and 209. Now let's come to fourth point which says that the state and central government will have to comply with the directions issued by the court from time to time with respect to constitution of special courts. जैसे बेल एक्ट आने वाला था जो फर्स्ट प्रोविजन में, तो वो ये बोल रहा है कि अगर कोई स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करते हैं, स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने का मोटिव क्या रहता है कि जल्द से जल्द जो भी मैटर है विच दैट स्पेशल कोर्ट इज गोइंग टू डील विद वो स्पीडीली डिस्पोज ऑफ हो सके. सो इफ द स्पेशल कोर्ट हैज बीन सेट अप फॉर ग्रांटिंग बेल टू द अक्यूज्ड, तो accordingly the directions should be followed by state and central government both. Then the second point is the high courts are directed to undertake the exercise of finding out the under trial prisoners who are not able to comply with the bail conditions. अगर आपने पढ़ा होगा बेल का प्रोविजन, सो बेसिकली ये क्या कहता है कि विद इन 7 days अगर कोई इंसान is not able, if an accused person is not able to furnish bail within 7 days, then that person is said to be an indigent person. That means he is not able to furnish the bail and bond amount. तो ये कहता है कि हाई कोर्ट वो बेल the one who are going under trial, that is one who are under trial, या हम ये बोल सकते हैं जिनके अगेंस्ट में ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है, उनकी एक लिस्ट निकालेगा and then shall take the initiative of releasing those accused person. Now let's come to F point which says that the bail application is ought to be disposed of within 2 weeks except if the provisions mandate otherwise. मतलब अगर लॉ कुछ और कहता है या लॉ कुछ ज्यादा लॉन्गर पीरियड की बात करता है तो बात अलग है. Otherwise every bail application has to be disposed of within the period of 2 weeks. Then the second part of this point says that application for anticipatory bail is expected to be disposed of within a period of 6 weeks. इसका मतलब anticipatory bail is granted under section 438 of the code. वो क्या बोल रहा है, एंटीसिपेटरी बेल 6 वीक्स के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, जो भी डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए, एंड द नॉर्मल बेल एप्लीकेशन शुड बी डिस्पोज ऑफ विद इन 2 weeks. Then comes to the last second guideline which says that all the state government, union territory and high courts are directed to file affidavit and status report. जिस दिन भी ये judgment lay down किया गया वहां से within 4 months the state government, union territory and high courts were directed to file a status report कि कितने लोग हैं अंडर ट्रायल में, किनको बेल मिली है, कितने दिन में मिली है, so as to collect the data of granting bail. And the last provision is the mandate of section 440
of the code has to be followed. So basically इसका मतलब क्या है कि जो सेक्शन 440 है वो क्या बोलता है कि बॉन्ड का अमाउंट शुड बी ए रीजनेबल अमाउंट. जब बेल बॉन्ड में रिलीज होता है तो वो अमाउंट रीजनेबल होना चाहिए. तो ऐसा नहीं कर हमको बेल इज द रूल को फॉलो करना है तो हम किसी भी अमाउंट पे रिलीज कर देंगे. दैट शुड बी रीजनेबल विद द ऑफेंस व्हिच हैज बीन कमिटेड बाय द अक्यूज्ड पर्सन. तो वो यही बोल रहा है कि 440 का कंप्लायंस तो होना ही चाहिए. So I hope this is clear. So this was the one of the case law in amendment. Now next case is PHR Invent Educational Society versus UCO Bank and others. So यहाँ पे ये lay down करा गया कि जो writ petition file होती है under Article 226 before the High Court can be entertained in spite of availability of an alternative remedy. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये जरूर पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जहां ऑल्टरनेटिव रेमेडी है वहां रिट पिटीशन एंटरटेन नहीं होती है ना. बट 226 में इवन इफ देयर इज एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी हम 226 की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ रिट अंडर आर्टिकल 226 फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट. पर उसके लिए 3 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है. द फर्स्ट कंडीशन व्हिच हैज बीन लेड डाउन इज the statutory authority is not acted in accordance with the provision of the enactment. जब कोई statutory authority, that is the authority which has been established by statute, should have acted in accordance with the provisions of the enactment, है ना. एक्ट के अगर अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक्ट नहीं कर रही है देन द अथॉरिटी के अगेंस्ट में वी कैन फाइल अ रिट पिटीशन. The second point is authority has acted in defiance of the fundamental principles of judicial procedure. मतलब जो authority है, the statutory authority has acted against the fundamental principle, that is against the chapter 3 of the constitution. The third point is the authority has resorted to invoke the provisions which are repealed. मतलब जो provisions repeal हो गए हैं उसके according वो act कर रही है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम सबको पता है कि सीआरपीसी और न्यू आईपीसी वगैरह आया हुआ है 1 जुलाई 2024 से, दैट हैज कम इनटू इफेक्ट. बट स्टिल अगर 1 जुलाई के बाद में कोई ऑफेंस होता है एंड देन द अथॉरिटीज फाइल द केस अगेन अंडर द प्रीवियस इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी, तो रिट पिटीशन कैन बी एंटरटेन्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट बिकॉज जो रिपील्ड प्रोविजन है, रिपील का मतलब ये रहता है जो खत्म कर दी गई, जो कैंसल्ड प्रोविजन है उसके अगेंस्ट अगर आप केस फाइल कर उसमें अगर आप केस फाइल कर रहे हो तो writ petition shall be entertained. The fourth point is when an order has been passed in total violations of principles of natural justice. अगर principles of natural justice follow नहीं किया गया है then also the writ petition can be entertained. So ये 4 cases में basically these are not the 4 conditions but the 4 different scenarios in which the article petition of an article 226 can be entertained. The star point of this case law was if the alternative mechanism or the detailed mechanism has been provided under the enactment, High Court will not entertain the petition. इसका मतलब क्या हुआ, remedy provided है act में, but अगर mechanism में provided, that is the way of having resort to that remedy, मतलब कि अगर हमें proper detailed procedure दिया कि हमें remedy कैसे मिलेगी तो फिर वो process follow होगा, 226 का process follow नहीं होगा. Now, next case is the Authority for Clarification and Advanced Ruling and another versus Mrs. Akavi Spinning Mills Private Limited. तो ये केस लॉ में कुछ नहीं हुआ था. बेसिकली हैंगकियान जो है ये तमिलनाडु के एक वैट टैक्स एक्ट में हैंगकियान एक एग्जेम्प्टेड एंट्री में दिया गया है. उतना डिटेल फैक्ट्स की जरूरत नहीं है बट जस्ट फॉर द नॉलेज वो ये बोलता है कि जो हैंगकियान था उस पर टैक्स नहीं लगेगा. अब नाउ द क्वेश्चन अरोज, ये कॉटन हैंगकियान है या ये सिल्क हैंगकियान है या ये कौन सा हैंगकियान की बात कर रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया एंड देन सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट सिंस the quality of the हैंगकियान या completely कौन सा हैंगकियान has not been provided and the entry is just specifically mentioning हैंगकियान is to be excluded or say exempted, then it should not be dependent upon only cotton हैंगकियान or silk हैंगकियान. सारे टाइप के हैंगकियान can be exempted under the Wet Tax Act in which this entry was provided. The last line here is little important. It says that the exemption entry being clear and unambiguous, so no external aid for interpretation is called off. मतलब no external aid of for interpretation. External aid of the interpretation का मतलब ये रहता है when we seek the interpretation of law outside the statute. For example, we refer the parliamentary committees meeting, we refer the constituent assembly meetings, we refer the total scenario behind which the act was enacted. Law के अलावा अगर हम interpretation करने के लिए किसी भी चीज की help लेते हैं, that is called external aid for interpretation.
तो यहाँ इस केस में यही हुआ कि हम एक्सटर्नल एड फॉलो करेंगे। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि एक्सटर्नल एड की जरूरत ही नहीं है। द वर्ड इटसेल्फ दैट इज हैंकयान इट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स दैट ऑल द टाइप्स ऑफ हैंकयान इज टू बी एक्सक्लूडेड। Then the next case is यशपाल जैन वर्सेस सुशीला दे। ये जो अमेंडमेंट है ना, ये सीपीसी में आया है। सो बेसिकली ये क्या कहता है कि डायरेक्शन इट प्रोवाइड्स फॉर द डायरेक्शंस फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ सिविल केसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि सिविल केसेस यूजुअली ना बहुत 7, 8, 10 साल लंबे चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना एक डायरेक्शंस लेट डाउन करे गए कि भाई हाउ द सिविल केसेस इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ स्पीडीली। So the first guideline was all the courts at district and taluka level shall ensure proper execution of the summons. मतलब सारे district and taluka court ensure करेंगे कि summons अगर एक बार issue हो रहा है then that has to be properly executed. The second point is all the courts at district and taluka level shall ensure that the written statement is filed within 30 days, and if even if the extended is to provided then it should not extend beyond 30 days. वो क्या बोलता है कि जो प्लेंट आ गई उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का यूजुअली भी टाइम 30 डेज है, बट केसेस क्या करते हैं ना कि पार्टीज के एक्सक्यूज पे एक्स पीरियड को एक्सटेंड कर देते हैं 60 डेज तक। तो कोर्ट ने क्या कहा कि स्पीडीली डिस्पोज ऑफ करने के लिए आप वैसे तो 30 डेज ही लेंगे, ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस एंड इन द रीजंस इन इफ द रीजन इन राइटिंग इज प्रोवाइडेड ओनली देन द पीरियड इज टू बी एक्सटेंडेड beyond 30 days. Then the third point is all the courts at district and taluka level shall ensure after pleadings are complete that the party should be called upon to appear on the day fixed for admission or denial. मतलब एक बार pleadings complete हो जाती है, pleadings का मतलब plaint and written statement, एक बार plaint आ गया, एक बार written statement आ गई, then both the parties shall appear before the court on the day fixed, है ना, that is called admission date. ठीक है, दोनों पार्टी, एक ने प्लेन फाइल किया, एक ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया, फिर दोनों एक फिक्स्ड डे पर आते हैं बिफोर द कोर्ट एंड देन द कोर्ट आस्क्स कि वेदर दे हैव टू प्रोसीड विद द ट्रायल और दे हैव टू सीक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एडीआर। एडीआर अगर आप पढ़े होंगे तो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, सेटलमेंट सब इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो पार्टीज को एडीआर का रिजॉर्ट लेना है या पार्टीज को नॉर्मल ट्रायल में प्रोसीड करना है, ये पार्टीज से पूछा जाता है। इफ दे ऑप्ट फॉर एडीआर and अगर ये लगता है कि ADR is not being fruitful within the 2 months, then the trial shall commence from the next day so fixed. अगर हमें लगता है कि नहीं ADR से काम नहीं चल रहा है, 2 मंथ में ये डिसीजन ले लेना है कि अगर हमने ADR ऑप्ट किया है तो 2 महीने के अंदर अंदर ये डिसीजन ले लेना है, फाइनल करना है कि अगर ADR करना है 2 महीने में आप ADR करो, नहीं होता है then we shall proceed with the trial. The other is, in the event of the party's failure to opt for ADR, the court should frame the issues for its determination within 1 week. If you would have studied the complete stages in the CPC, which provide that framing of the issues is also one of the stage. तो वो क्या बोलता है कि अगर ADR opt नहीं कर रहे हो, then framing of the issue should be done within the 1 week. The next is judges of district and taluka court shall as far as possible maintain the diary so that it can be analyzed that कितने cases एक दिन में handle हो रहे हैं, and to avoid overcrowding of the cases. Usually क्या होता है ना कि वो डायरी एक मेंटेन, जैसे पुलिस ऑफिसर्स केस डायरी मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पर भी बोला गया है कि जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट हैज टू एस्टैब्लिश और मेंटेन अ डायरी जिसमें वो लिखा जाए कि आज के दिन में वी हैव हर्ड 100 केसेस एंड दिस इज व्हाट द एडजर्नमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड, सो दैट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ द टाइम the case is not getting adjourned unnecessarily. तो एक fixed amount of the cases सुने जाएंगे एक दिन में, and that is why the Supreme Court has asked every judge of the district and taluka court to maintain the diary in order to avoid overcrowding of the cases. The sixth point is once the trial has commenced, it shall be proceeded from day to day. That means कोई भी unnecessary adjournment provide नहीं किया जाएगा, एक बार ट्रायल शुरू हुआ day to day basis पे hearing होगी. Then the seventh point is the court shall give meaningful effect to the provisions for the payment of the cost for ensuring that no adjournment is sought for procrastination of the litigation. Procrastination of the litigation का मतलब ये unnecessary delay नहीं हो रहा है litigation के process में. इसीलिए the party who is seeking adjournment shall bear the cost of the opposite party as well. Why? क्योंकि opposite party तो ready है. And now if you are seeking adjournment from the honorable court, तो फिर then you will have to bear the cost of that opposite party. Why? Because it is you who is requesting the delay in the process. तो cost bear करना पड़ेगा as a form of a compensation to the
ऑपोजिट पार्टी को। तो कहीं ना कहीं 6th और 7th पॉइंट अगर आप देखोगे तो वो सेम ही है। 6th बोलता है कि एडजर्नमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा और डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा। 7th क्या बोलता है, इन केस अगर आप एडजर्नमेंट दे रहे हो तो ऑपोजिट पार्टी कॉस्ट बियर करेगी। Then the 8th point is the statistics relating to the cases pending in each court beyond 5 years shall be forwarded by every presiding officer to the principal district judge once in a month and the same shall be forwarded to the review committee. क्या हो रहा है कि एक स्टैटिस्टिक्स मेंटेन की जाएगी कि एनी केस विच इज एक्सीडिंग बियॉन्ड 5 years, तो हम उस केस को डिस्ट्रिक्ट जज को फॉरवर्ड कर देंगे once in a month. इसका मतलब क्या है कि ये वाले जो केसेस है, ये जो डेटा है ऑफ द केसेस हैव एक्सीडेड बियॉन्ड 5 years एंड देन वी शैल प्रोवाइड द रीजंस कि भाई क्यों डिले हुआ है, हम डिस्ट्रिक्ट जज को फॉरवर्ड कर देंगे once in a month, and then the district judge shall forward the same to the review committee. अब रिव्यू कमेटी क्या है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड कि हर हाई कोर्ट एक रिव्यू कमेटी को इस्टेब्लिश करेगा एंड दैट रिव्यू कमेटी का काम क्या होगा, इन ऑर्डर टू रिव्यू कि व्हाई हैज द डिले बीन कॉज्ड, व्हाई हैज द केस नॉट बीन कंप्लीटेड बियॉन्ड विद इन 5 years, ऐसा। The 9th point is again related to the 8th point, जो ये बोलता है the committee so constituted shall meet at least once in 2 months. इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 2 महीने में एक बार मिलेगी वो कमिटी एंड देन इट शैल टेक डायरेक्शंस, इट शैल इशू डायरेक्शंस की केस को कैसे जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये गाइडलाइंस अगर आप अमेंडमेंट में देखेंगे ना तो बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हुई है एंड इट इज रियली अ वेरी लॉन्ग पेज ऑफ अ गाइडलाइन, so I've tried to shorten it. You can learn this from the slide itself, and if you will understand, you'll be definitely able to write the answer completely and you will fetch good marks. The next point is the Pathapati Shubha Reddy versus the special deputy collector. इस केस में क्या हुआ था, ये लिमिटेशन एक्ट का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि द केस वाज फाइल्ड by the delay of 5,659 days, मतलब 5,670 दिन का डिले हो गया था केस फाइल करने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि वी कैन नॉट एंटरटेन दिस जस्ट बिकॉज आपके केस में मेरिट्स है, हम एंटरटेन नहीं कर सकते। तो जब अगर हमें डिले कोंडोन करना है, कोंडोनेशन ऑफ द डिले का मतलब क्या है, जब डिले हमें माफ करना है तो वी विल नॉट कंसिडर मेरिट्स, बिकॉज मेरिट्स के बेसिस पे ऐसा नहीं है ना कि अगर कोई चीज का लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया तो केस कोर्ट एंटरटेन कर लेगा, नो दिस इज नॉट वर्किंग। तो इसमें भी गाइडलाइंस ले डाउन करी गई कि डिले कब माफ करना और कैसे माफ करना है। द फर्स्ट गाइडलाइन इज लॉ ऑफ लिमिटेशन इज बेस्ड अपॉन पब्लिक पॉलिसी that there should be an end to litigation. अगर आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द लिटिगेशन चैप्टर जो है, it itself says that the main motive of bringing the limitation act is that there should be an end to litigation. Litigation को खत्म करना है, तो this is the main logic behind bringing the law of limitation. तो ये breach हो जाता है if in case we grant we condone the delay in every case. सेकेंड क्या है, राइट टू द रेमेडी हैज नॉट बीन एक्सरसाइज्ड और अवेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम मस्ट कम टू एंड। जिस राइट को आपने लॉन्ग टाइम तक एक्सरसाइज नहीं किया तो वो राइट अब तो खत्म ही हो जानी चाहिए, ये एक लॉजिक है। The third point is section 3 has to be construed in a strict sense, whereas section 5 has to be construed liberally. Liberally का मतलब क्या है, in a wider scope. वो क्या कहता है कि सेक्शन 3 को हम लिटरली पढ़ के स्ट्रिक्ट सेंस में इंटरप्रेट करेंगे। सेक्शन 3 क्या प्रोवाइड करता है कि जो लॉ है, जो लिमिटेशन का लॉ है, एंड वंस द लिमिटेशन पीरियड हैज एक्सपायर्ड नो केस शैल बी एंटरटेन्ड बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड। तो दैट हैज टू बी इंटरप्रेटेड इन अ स्ट्रिक्ट सेंस कि एक बार लिमिटेशन पीरियड चले गया, हम केस को एंटरटेन नहीं करेंगे। बट सेक्शन 5 provides little liberty, stating that if the delay reasons are completely provided and the court finds that reason to be good enough to condone the delay, the court shall condone the delay. तो मतलब क्या है कि सेक्शन 5 को अगर लगता है कि नहीं फाइन, अगर कोई जेन्युइन रीजन था जिसके कारण केस फाइल नहीं किया गया, तो सेक्शन 5 अलाउ करता है कि हम डिले को कंडोन कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करना है कि सेक्शन 3 को हमें स्ट्रिक्ट सेंस में पढ़ना है, बट सेक्शन 5 को वाइडर स्कोप में पढ़ना है, लिबरली पढ़ना है, सो दैट लिबर्टी कैन बी प्रोवाइडेड। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पॉइंट, जो बोलता है कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज discretion to condone the delay if sufficient cause has been explained. यही मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बोला, अगर sufficient cause है तो फिर कोर्ट का डिस्क्रिशन, इवन दो sufficient cause है तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, I have provided the sufficient cause and now the court is mandated to condone the delay. No, court is not having any mandation, but it is the discretionary power of the court to condone the delay.
Now let's come to fifth point. वो क्या बोलता है? Merely some person obtained relief in similar matter does not mean that they are entitled to same benefit. आप कोर्ट को previous cases रेफर करते हो, that works. बट आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि आपने प्रीवियस केस में को डिले को कंडोन किया था, आप मेरे केस में भी करो, द नेचर ऑफ बोथ द केस इज सेम. नो, दिस इज नॉट वर्किंग. वो क्या बोलता है कोर्ट कि इवन दो सेम बेनिफिट है, सेम मैटर है, सिमिलर मैटर है, बट हम बेनिफिट जो कॉम्बिनेशन ऑफ द डिले का है वो हम केस टू केस बेसिस पे वेरी करेगा एंड देन देयर वी विल बी एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशनरी पावर. 6th पॉइंट इज सेम जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. मेरिट्स ऑफ द केस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंडोनिंग द delay. 7th point is delay condonation application has to be decided on the parameters laid down for condonation of delay. जो भी section 5 ने parameters बोले, that is day to day delay explain करना पड़ता है, sufficient cause देना पड़ता है, reasonable grounds देने पड़ते हैं, वो सारे parameters, वो सारे factors को follow करके ही delay condone होगा. The shortest case of the amendment is Ajay Dabra versus Pyare Ram. इसमें क्या हुआ था कि देखो, appellant was not capable of purchasing the court fees and this was not the sufficient reason. अब अपीलेंट यहाँ पे आया कि सर मैं जो स्टैम्प फीस थी या बोलो जो कोर्ट फीस थी मैं वो बियर नहीं कर सकता था और इसी के लिए मेरा सफिशिएंट रीजन है, मैंने जब तक पैसे जमा किए तब तक मेरा लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, तो आप प्लीज ये डिले कर दो. कोर्ट ने देखा, अब हाँ अपीलेंट का बैकग्राउंड, कोर्ट ने रियलाइज किया क्या, दैट ही इज अ बिग बिजनेसमैन एंड अ होटेलियर, तो ये तो कोई ग्राउंडिंग है कि यू वर नॉट एबल टू परचेज द कोर्ट फीस. तो कोर्ट ने क्या बोला कि वी विल नॉट कंडोन द डिले. नाउ लेट्स कम टू लास्ट सेकंड केस, आई गेस दिस इज पूर्णी देवी एंड अनदर वर्सेस बाबू राम. इसमें क्या बोला गया, द क्वेश्चन इन दिस केस वाज whether the time spent in wrong forum be excluded from period of limitation. ये चीज आपने लिमिटेशन एक्ट में ही पढ़ी. wrong forum मतलब wrong court. if in good faith you were litigating इन रॉन्ग कोर्ट, रॉन्ग फोरम पे आप जा रहे थे, तो क्या वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में एक्सपायर जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गया है, तो क्या जो जिस टाइम पीरियड पे यू वर लिटिगेटिंग इन रॉन्ग फोरम कैन दैट बी एक्सक्लूडेड. मैं वापस बोलती हूँ, तो ये बोलना चाहता है कि इन केस अगर कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन है जो कि चल रहा था एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू इन गुड फेथ फाइल्ड द कोर्ट केस बिफोर द रॉन्ग कोर्ट, and by the time you realize that this case was filed in before the wrong forum, the limitation period got expired. So can I get the exclusion of the time period for which I had been litigating in wrong forum? ये क्वेश्चन उठा है एंड दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 14. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी सेक्शन 14 का एप्लीकेशन हुआ. कोर्ट ने क्या बोला कि yes, this time period can be excluded. But again, the 5-point direction was laid down. The first was both the prior and subsequent proceedings are civil proceeding prosecuted by the same party. Same party civil case को prior में भी डील करी थी एंड subsequent proceeding, मतलब दोनों केसेस में पार्टी सेम होनी चाहिए. The prior case जिसमें आप एक्सक्लूजन ले रहे हो जो wrong forum में था and the subsequent case जो आपने right forum में फाइल किया है. The second is the prior proceeding had been prosecuted with due diligence and in good faith. मतलब ऐसे exertly आपने किसी भी फोरम में नहीं किया, but you have exercised good faith. The third is the failure of the prior proceeding was due to defect of jurisdiction. मतलब उस कोर्ट केस के वो जो कोर्ट था जिसमें आपने कोर्ट केस फाइल किया था, that court did not had jurisdiction and due to defect of jurisdiction the proceeding failed. The fourth is the earlier proceeding and the later proceeding, that is the prior and the subsequent proceeding must be related to same matter and both the proceedings are in a court. मतलब ऐसा नहीं एक आर्बिट्रेशन में आप चले गए, आपको लगा कि अरे दिस मैटर इज आर्बिट्रेबल, तो आप आर्बिट्रेशन में चले गए एंड देन आप आते हो कि नहीं सर मुझे नहीं पता था, सो दिस शैल नॉट बी एंटरटेन्ड. दोनों केसेस कोर्ट में ही फाइल होने चाहिए. तो अगर हमें इसे इजीली याद करना है ना, तो आप फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट को पहले याद कर लो. सेम पार्टी, सेम मैटर, गुड फेथ, डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड कोर्ट. सेम पार्टी सेम मैटर, कोर्ट में जाएगी, ज्यूरिसडिक्शन का डिफेक्ट निकलेगा, गुड फेथ में केस फाइल किया. ऐसे करके याद कर लेना. 5 पॉइंट्स का ऑर्डर ऊपर नीचे करेंगे तो चलेगा, ठीक है. देन द नेक्स्ट केस इज NBCC Limited versus Zilon Infra Projects Private Limited.
अब इसमें क्या हुआ कि रेफरेंस जो मूट चीज जो लेट डाउन करी गई थी, दैट इज रेफरेंस इन वन कॉन्ट्रैक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट इप्सो फैक्टो मेक द आर्बिट्रेशन क्लॉज एप्लीकेबल अनलेस देयर इज स्पेसिफिक मेंशन या रेफरेंस देयर टू। ध्यान से समझना, ये क्या बोलता है कि अगर दो कॉन्ट्रैक्ट्स है, एक ए कॉन्ट्रैक्ट है, एक बी कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, लेट्स सी द फिगर। एक एक्स कॉन्ट्रैक्ट है एंड लेट्स अज्यूम दिस इज वाई कॉन्ट्रैक्ट। वाई कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आर्बिट्रेशन क्लॉज मेंशन किया है। आर्बिट्रेशन क्लॉज मेंशन किया है, इसका मतलब आई हैव स्टेटेड दैट अगर इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट द मैटर शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेटर। फाइन। और मैंने इसी कॉन्ट्रैक्ट में ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन में एक्स कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेकंड क्लॉज बोलता है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज है विच सेज दैट अगर हमारे बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डिस्प्यूट आएगा हम आर्बिट्रेटर के पास में जाके उसको रिजॉल्व करेंगे। एंड 10th नंबर का क्लॉज ये बोलता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एक्स कॉन्ट्रैक्ट शैल आल्सो बी फॉलोड। तो नाउ द क्वेश्चन अरोज, जो मेरा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसमें डिस्प्यूट आया तो मैं आर्बिट्रेशन में जाऊंगी, बट अगर मेरे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट आया तो क्या मैं आर्बिट्रेशन में जा सकती हूँ? ये क्वेश्चन उठा। वापस देखिए आप, रेफरेंस इन वन कॉन्ट्रैक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, हमने रेफरेंस दिया किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का, एक्स कॉन्ट्रैक्ट का वाई कॉन्ट्रैक्ट में, would not ipso facto make the arbitration clause applicable। ipso facto मतलब by virtue of fact, जस्ट बिकॉज हमने रेफरेंस दिया है तो इसका मतलब ये नहीं एक्स पे भी आर्बिट्रेशन क्लॉज लगेगा, नहीं लगेगा। सो दिस वाज द बेसिक डायरेक्शन व्हिच वाज लेड डाउन। प्लीज लर्न दिस केस बाय हार्ट। आई हैव अ फीलिंग दैट ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या हुआ था कि अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लेड डाउन करी गई है एंड रेफरेंस दिया गया है किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का, और ये सेकंड जो मैं पहले जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात करती हूँ उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज भी है, तो क्या वो जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जिसका मैं रेफरेंस दे रही हूँ उस पे भी आर्बिट्रेशन क्लॉज लगेगा? नहीं लगेगा। जस्ट बिकॉज रेफरेंस हैज बीन मेड, आर्बिट्रेशन क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। लेट्स रीड इट। द रिस्पोंडेंट सबमिटेड द बिड एंड अपीलेंट अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द वायर्स, ये स्पेलिंग एरर है, वायर्स टू द रेस्पोंडेंट। मतलब जो रेस्पोंडेंट था दैट इज जिलोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसने अपनी बिड सबमिट करी और अपीलेंट ने उसको वायर्स बनाने का कंस्ट्रक्शन, वायर्स कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट दे दिया। अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया, आर्बिट्रेशन में जाना था, तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि ओके फाइन, आप आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट द प्रेजेंट केस is not a case of incorporation but a case of reference. As such, general reference would not have the effect of incorporating the arbitration clause. अगर आपको X terms में dispute है तो आप X terms के X contract के terms देखेंगे ना, आप second contract का term देख ही नहीं सकते। इसी के लिए अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज आपको एनफोर्स करना है एक्स कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज रेफरेंस से आप आर्बिट्रेशन क्लॉज इनफोर्स लाना चाहते हैं, दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, तो आप मेन हेडलाइन याद कर सकते हो, रेफरेंस इन वन कॉन्ट्रैक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट इज इप्सो फैक्टो मेक द आर्बिट्रेशन क्लॉज एप्लीकेबल अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक मेंशन। मतलब अगर हम यही अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक मेंशन, मतलब मैंने क्लियरली बोल दिया है कि मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस दे रही हूँ उस पर भी आर्बिट्रेशन क्लॉज लगेगा। अगर मैं ये सेंटेंस डाल देती हूँ तो बात अलग है, बट अगर मैं ये नहीं डाल रही तो जस्ट बिकॉज दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रेफर्ड और उस कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट होता है तो आप आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके बुक में मीडिएशन एक्ट 2023 होगा मॉड्यूल में, इन चैप्टर आर्बिट्रेशन क्लॉजेस, सॉरी आर्बिट्रेशन एक्ट। अब इसमें क्या मीडिएशन एक्ट 2023 क्या बोलता है, इसमें बहुत मतलब 2-3 पेजेस का ये एक्ट एनेक्टेड है एंड रिसेंटली एनेक्टेड एक्ट है ऑफ ईयर 2023। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस लेट डाउन करेगी। लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन एंड मेन क्लॉजेस। The international mediation का मतलब क्या? It means the mediation undertaken under this act and it relates to a commercial dispute arising out of a legal relationship under any law for the time being in force in India and where at least one of the parties is an individual, body corporate or an association which is situated outside India or a government of a foreign country. तो ये क्या बोलता है, अगर हम शॉर्ट में इसको समझे कि इंटरनेशनल मीडिएशन दो पार्टीज के बीच का मीडिएशन है जहां पर एक पार्टी तो इंडिया की है बट दूसरी पार्टी क्या है, फॉरेन पार्टी है। यही कहीं हमने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी पढ़ा है यही चीज।
वो क्या बोलता है, अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, इफ बोथ आर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल इंडिया का है, दूसरा इंडिविजुअल जो है वो फॉरेन कंट्री का, या दूसरा जो पार्टी दैट इज अ गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, और अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ LLP incorporated, yeah, which is having place of business outside India, or an association or body of individuals whose place of business is outside India. Now let's come to the definition of mediation. क्या definition है? Mediation is a process whereby parties attempt to reach an amicable settlement. Amicable settlement मतलब friendly settlement with the assistance of a third person referred to as mediator and who does not have authority to impose settlement अपॉन द पार्टीज. मीडिएशन का अगर आप कीवर्ड्स देखेंगे, आपको ये करना है, कीवर्ड्स अगर याद करना है, इट इज अ एमिकेबल सेटलमेंट with the assistance of a third person, and that third person cannot enforce or does not have authority to enforce settlement. इसका मतलब क्या हुआ, ये एक प्रोसेस है जो कि फ्रेंडली सेटलमेंट कराता है बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, एंड एक असिस्टेंस लेता है किसी थर्ड पर्सन की, पर उस जो थर्ड पर्सन जो असिस्टेंस दे रहा है, दैट पर्सन इज नॉट हैविंग द पावर और द अथॉरिटी टू एनफोर्स सेटलमेंट. मतलब वो जबरदस्ती नहीं कर सकता कि अरे नहीं, सिंस यू हैव अग्रीड नाउ यू हैव टू एनफोर्स दिस सेटलमेंट. ये पावर आर्बिट्रेटर के पास था. So this is the major difference between arbitration and mediation. Arbitrator में क्या रहता है ना, he is having the authority to enforce the settlement, ठीक है, but the mediation is not having the authority, या mediator is not having the authority to enforce settlement, ठीक है. I am repeating it again. Mediation एक process है which is bringing parties to an amicable settlement, that is friendly settlement, with the assistance of a third person who is called mediator and is not having the authority to impose settlement, ठीक है. इसमें बहुत सारे मीडिएशन इंक्लूड हो गए, ऑनलाइन मीडिएशन, प्री लिटिगेशन मीडिएशन, कम्युनिटी मीडिएशन. सो दैट्स इट. सेक्शन 45 क्रिएट क्या करता है मीडिएशन एक्ट का, मीडिएशन फंड की बात करता है, एंड देन वो फंड में कितना पैसा जाएगा, कैसा जाएगा, दैट इज ऑल डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड. ये जो फंड है इसका ऑडिट कौन करेगा, CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है. अगर कोई और ये क्या होगा कि जो ये CAG जो है ना, ये मीडिएशन काउंसिल जो रहती है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द CAG शैल बी पेएबल बाय द काउंसिल. मतलब मीडिएशन काउंसिल जो सेटअप है ये इसका एक्सपेंसेस बियर करेगी. अगर the council shall be bound by the directions on the questions of policy as the central government may give in writing. अगर कोई क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी उठता है कि मीडिएशन की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से एक्ट करना है, तो जो मीडिएशन काउंसिल है दैट शैल बी बाउंड बाय द डिसीजन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट वेदर क्वेश्चन इज वन ऑफ द पॉलिसी और इज नॉट, इट शैल बी फाइनल. मतलब जो भी डिसीजन आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, इट कैन नॉट बी अपील बिफोर एनी कोर्ट, एंड द डिसीजन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी फाइनल विद रिस्पेक्ट टू एनी क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी इन रेफरेंस टू मीडिएशन एक्ट, ठीक है. द नोटिफिकेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब मीडिएशन एक्ट में अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन रूल्स एंड रेगुलेशन लाएंगे, आप बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसे ले डाउन करेंगे, और वो दोनों हाउसेस के सामने ले डाउन रहेगा फॉर द पीरियड ऑफ टोटल 30 days, which may be comprised in one session or in 2 or more successive sessions. मतलब अगर कोई भी नया रूल, नोटिफिकेशन, रेगुलेशन अगर आता है मीडिएशन एक्ट में, वो बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर द पीरियड ऑफ 30 days ले डाउन किया जाएगा. एक सेशन में, एक सेशन मतलब जैसे मॉर्निंग सेशन हो गया, या एक से ज्यादा सेशन में, बट द टोटल पीरियड बिफोर बोथ द हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा का 30 days होना चाहिए. 30 days इंडिविजुअली दोनों हाउसेस के सामने. अगर 30 days की एक्सपायरी के पहले डिसीजन आ जाते कि नहीं, वी डोंट वांट टू एनेक्ट दिस रूल और रेगुलेशन, तो कहानी खत्म हो गई. और अगर उसके पहले वो अग्री कर जाते हैं तो भी अच्छी बात है, पर टोटल पीरियड 30 days के लिए होगा. अगर 30 days में कोई डिसीजन नहीं आता है, इसका मतलब दे हैव डिनाइड द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन रूल एंड रेगुलेशन. विद इन द पीरियड ऑफ 30 days बोथ द हाउसेस हैज टू टेक द डिसीजन, ठीक है. देन आईटी एक्ट में एक नया आया है, अमेंडमेंट आया, लॉ ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है. इसकी जो एप्लीकेशन डेट है, एप्लीकेशन डेट मतलब जो इफेक्ट जब से इफेक्ट होगा, इसकी डेट अभी नोटिफाइड नहीं करी गई है, बट दिस एक्ट हैज बीन लेड डाउन इन द अमेंडमेंट, सो लेट्स गो थ्रू इट. डेटा प्रिंसिपल, डेटा प्रिंसिपल कौन है, इट मीन्स द इंडिविजुअल टू होम द पर्सनल डेटा रिलेट्स, ठीक है. डेटा प्रिंसिपल कौन इंसान है, जिससे भी रिलेटेड वो डेटा है, हम उसे बोलते हैं डेटा प्रिंसिपल. इन केस ऑफ चाइल्ड, हम पेरेंट्स या लॉफुल गार्जियन ऑफ दैट चाइल्ड को भी डेटा प्रिंसिपल बोलेंगे. अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, देन लॉफुल गार्जियन,
एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन हु इज डिसेबल को हम डेटा प्रिंसिपल बोलेंगे। पर्सनल डेटा ब्रीच क्या होता है? एनी अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा और एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर, शेयरिंग, यूज, ऑल्टरेशन, डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ एक्सेस टू पर्सनल डेटा। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा, मतलब अगर आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसको कोई विदाउट योर परमिशन प्रोसेस कर रहा है, या कोई गलती से कोई डिस्क्लोजर हो जाता है, या कोई शेयरिंग हो रही है, या आपके पर्सनल डेटा में कुछ भी चेंज हो रहा है, कुछ डिलीट किया जा रहा है, या आपका कोई एक्सेस ले रहा है पर्सनल डेटा का, जिसको हैकिंग भी बोला जाता है, तो उन सबको हम बोलते हैं दिस इज द ब्रीच ऑफ पर्सनल डेटा, और दिस कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल डेटा ब्रीच। पहला पॉइंट क्या बोलता है? कोई भी अनऑथराइज प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा, ऑल्टरेशन, शेयरिंग, यूज, डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ एक्सेस टू पर्सनल डेटा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? दैट कॉम्प्रोमाइज द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी और द अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल डेटा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी जो प्राइवेट स्पेस है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो ब्रीच हो रही है, जो सीक्रेटनेस है वो ब्रीच हो रही है, या वो इंटीग्रिटी या पर्सनल डेटा ब्रीच हो रहा है। तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट डेफिनेशन है, आप एक पैराग्राफ में उसको एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं, बट आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। पहला क्या बोलता है? पर्सनल डेटा ब्रीच। ब्रीच कैसे होगा? एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर से होगा, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ पर्सनल डेटा होगा, लॉस ऑफ डेटा होगा, ऑल्टरेशन ऑफ डेटा होगा, ठीक है। एंड अगर वो कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी को ब्रीच करे तो हम कंप्लीटली पर्सनल डेटा ब्रीच उसे बोल सकते हैं। सेक्शन 3 जो है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का, वो क्या बोलता है? एप्लीकेबिलिटी इसकी कहाँ कहाँ है, उसकी एप्लीकेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो क्या बोलता है? इट अप्लाइज टू विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेयर द पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड इन डिजिटल फॉर्म और इन नॉन डिजिटल फॉर्म एंड डिजिटलाइज सब्सिक्वेंटली। मतलब अगर आप कोई भी डेटा डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी इस डेटा की, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की। और अगर आपने उसको नॉन डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट किया है, मतलब अगर आपने हार्ड कॉपी कलेक्ट करी और उसके बाद में आप उसको डिजिटलाइज करते हैं, तो उस केस में भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल होगा। जैसे मतलब मान लो अगर आपने कोई फॉर्म भरा, वो फॉर्म भर के वो डिजिटलाइज कर दिया गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और फिर बी पॉइंट क्या बोलता है? also apply to processing of data personal data outside the territory of India if such processing is in connection with any activity relating to or offering of goods or services within the territory of India। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डेटा है जो कि बेसिकली क्या रह रहा है, अगर कोई डेटा है, ठीक है, दो चीज से एप्लीकेशन हो रही है। पहला तो ये है कि इट शैल अप्लाई टू विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर कोई भी डेटा कलेक्ट किया है, अगर वो डिजिटल फॉर्म में या वो नॉन डिजिटल फॉर्म के बाद में डिजिटाइज हो रहा है। द सेकेंड क्या बोलता है कि अगर आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज, जैसे कोई फॉरेन कंपनी है, मान लो अमेजोन हो गई, ठीक है, अब अमेजोन ने आपकी एड्रेस ले लिया, आपकी पर्सनल चॉइसेस ले लिया, आपसे एक डेटा कलेक्ट कर लिया, एंड देन फिर वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रही है, तो अमेजोन बीइंग अ फॉरेन कंपनी ऑल्सो उस पर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई होता है। व्हाई? बिकॉज द डेटा हैज बीन कलेक्टेड in order to process any goods or services or offer goods or services within to the data principal within the territory of India, ठीक है। अब कहाँ अप्लाई नहीं होता है सेक्शन 3? वो ये बोलता है, सेक्शन 3 नॉन एप्लीकेशन की भी बात करता है। वो ये बोलता है that personal data processed by an individual for any personal or domestic purpose, अगर किसी अपने पर्सनल डोमेस्टिक पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट किया है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट काम नहीं आएगा। पर्सनल डेटा दैट इज मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल, अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे खुद ही लीक कर रहे हो तो वहां पे कैसे डेटा प्रोटेक्शन? कोई डेटा प्रोटेक्शन ही नहीं है, ठीक है। अब इसी का 2 बाइफर्केशन कर दिया गया है, द डेटा प्रिंसिपल टू होम सच पर्सनल डेटा रिलेट्स, ठीक है। अगर कोई आपका डेटा प्रिंसिपल है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर रहा है, तो उसमें फिर डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। एंड द सेकेंड इज एनी अदर पर्सन हु इज अंडर एन ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ टू under any other law for the time being in force in India to make such personal data public, मतलब कोई लॉ ने आपको बाउंड किया कि आप उस डेटा को पब्लिक करो, ठीक है। जैसे जैसे कोविड वैक्सीन लगने लगी थी तो आपने अपना आधार कार्ड दिया, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, तो दैट इज यू आर बाउंड बाय द लॉ टू डिस्क्लोज। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरा डेटा ब्रीच हो गया, नो, आपने ऑल्दो आपने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, बट आपने वो, अगर आप या पब्लिकली अवेलेबल किसी इंफॉर्मेशन को करते हो तो उस केस में वो डेटा ब्रीच नहीं होता है, ठीक है। सेक्शन 44 ऑफ द आईटी एक्ट क्या बोलता है कि ये जो जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट आया है ना,
एक सेकेंड। अब सेक्शन 44 ऑफ द आईटी एक्ट क्या बोलता है, वो थोड़ा सा अमेंडमेंट आया है कि जो जन विश्वास अमेंडमेंट आया था जहां पर सारे जो जेल जाने के प्रोविजंस थे उनको हटा करके न्यू पेनल्टीज ऐड कर दी गई। तो ये कुछ अमेंडमेंट उसकी वजह से आया है जो ये बोलता है इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स और रेगुलेशन टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट टू द कलेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी इंसान को कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट करना है कलेक्टर को और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है, एंड इफ दैट पर्सन डज नॉट फर्निश तो उसको पेनल्टी लगेगी अप टू 15 lakh rupees. The second says that if any return is to be filed or any information books or document is to be provided and if the same is not provided उसको कितनी पेनल्टी लगेगी, not exceeding 50,000 rupees for every day during which such failure continues. मतलब जब तक वो प्रोवाइड नहीं करता है, जब तक वो फाइल नहीं करता है, 50,000 पर डे लग सकता है, मैक्सिमम 50,000 पर डे. And the last is maintain books of accounts or records fails to maintain the same. अगर उसको कोई डेटा मेंटेन करके रखना है, कोई इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रखनी है, and if that person is not maintaining, तो the penalty shall not exceeding 1 lakh rupees for every day during which the failure continues. तो अगर हम इसको याद करें ना पेनल्टी को जो अमेंडमेंट वाली है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फर्निश करना है इन्फॉर्मेशन नॉट एक्सीडिंग 15 lakhs फॉर ईच, मतलब ये टोटल पेनल्टी है, पर बाकी दोनों में एवरी डे की बात कर रहा है, एक में 50,000 कर रहा है, दूसरे में वो डबल कर देता है 1 lakh. एक में फाइल करना है तो 50,000 है, एफ फाइल 50,000, मेंटेन करना है तो पेनल्टी कितनी नहीं होगी, नॉट एक्सीडिंग 1 lakh पर डे. एंड अगेन फर्निश करना है, फर्निश एक बड़ा वर्ड है इसलिए पेनल्टी ज्यादा है 15 lakhs. मैं ये सब याद करने के पर्पज से बता रही हूँ. फर्निश है, फर्निश नहीं किया इन्फॉर्मेशन, कितनी पेनल्टी लगेगी, 15 lakhs, नॉट एक्सीडिंग, मैक्सिमम पेनल्टी इज 15 lakhs. फाइल करना है नॉट एक्सीडिंग 50,000 पर डे, एंड मेंटेन करना है नॉट एक्सीडिंग 1 lakh पर डे. फाइल एंड मेंटेन में पर डे की पेनल्टी है, फर्निश में मैक्सिमम 15 lakhs की पेनल्टी है. रेसिड्यूरी पेनल्टी, रेसिड्यूरी मतलब जो बचा कुछ है, अगर एक्ट में कहीं पे भी कोई पेनल्टी के बारे में बात नहीं करी गई है और ऐसा कोई ऑफेंस बोलना चाहिए कि अगर कमिट हो जाता है तो कितनी पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 1 lakh rupees इन एडिशन टू कंपेंसेशन नॉट एक्सीडिंग 10 lakh rupees बाय एन इंटरमीडिएरी एंड 1 lakh बाय एनी अदर पर्सन. इंटरमीडिएरी वगैरह वगैरह आपने आईटी एक्ट पढ़ा है, आपको ये सब पता होगा इंटरमीडिएरी कौन होता है, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, ठीक है. तो वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई रेसिड्यूअरी पेनल्टी है, मतलब जहां पे कुछ भी ऑफेंस की पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो हम रेसिड्यूअरी पेनल्टी कितनी होगी, इट शैल नॉट एक्सीड 1 lakh प्लस जो कंपेंसेशन, अगर इंटरमीडिएरी तो कंपेंसेशन कितना देगा, मैक्सिमम 10 lakh का, और कोई अगर दूसरा इंसान है तो मैक्सिमम 1 lakh rupees की पेनल्टी लगेगी, सॉरी कंपेंसेशन देना पड़ेगा. सो 10 lakh प्लस 1 lakh की पेनल्टी इफ इट इज इंटरमीडिएरी और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट. अगर इंडिविजुअल इंसान है देन 1 lakh प्लस 1 lakh की पेनल्टी. पावर टू एडजुडिकेट मतलब ये एक डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, बेसिकली बोलना चाहिए, इन ऑर्डर टू एडजुडिकेट एनी ऑफेंसेस और ऑफ द आईटी एक्ट, ठीक है. तो पावर टू एडजुडिकेट क्या बोल रहा है, वेयर एनी पर्सन हैज कमिटेड अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, the central government appoints any officer not below the rank of a director to the government of India or an equivalent officer. वो क्या बोल रहा है, एक इंडिविजुअल अपॉइंट होगा इन ऑर्डर टू कंडक्ट एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन मतलब कंडक्ट द ट्रायल और सूट, ठीक है. वो ये बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल अपॉइंट होगा, इंडिविजुअल की डेजिग्नेशन शुड नॉट बी लेस देन द डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट, ठीक है. दैट एडजुडिकेशन ऑफिसर जो रहेगा वो कितने क्लेम, जो अमाउंट है वो मैक्सिमम 5 crore rupees तक के केस सुन सकता है. दैट इज हिज पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन शुड नॉट एक्सीड ₹5 crore. बियॉन्ड 5 crore जो रहेगा वो लॉ में ऑलरेडी सेपरेटली प्रोवाइडेड है. The adjudicating officer shall, after giving the person a reasonable opportunity, may impose such penalty, ठीक है.
No person shall be appointed as an adjudicating officer unless he possesses an experience in the field of information technology and legal और judicial experience. मतलब उसके पास में information technology का experience भी रहना चाहिए plus legal experience भी रहना चाहिए, because he is conducting a trial, he is conducting a legal proceeding. तो of course knowledge होना चाहिए. उसके powers civil court के लिए civil court के जैसे होंगे. तो अगर आप देखेंगे power to adjudicate under IT Act, describe power to adjudicate under IT Act, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, then 5 points you have to write down. First क्या है कि the adjudicating officer shall be appointed and he shall not have or he shall not be below the rank of a director of the government of India or an equivalent officer of the state government. ठीक है. His power shall be similar to that of civil code. He shall possess a experience in legal field as well as in information technology field. Then the adjudication officer shall exercise jurisdiction to adjudicate matters up to the claim or damages act not exceeding 5 crores. 5 crores से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सिविल कोड का पावर होना चाहिए. आईटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए. देन डायरेक्टर्स की पोस्ट से नीचे का पोजीशन नहीं होनी चाहिए. फाइन. एंड लास्ट वाला रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा. So this was the end of JJL amendments December 2024. If you loved the video, do like it, do subscribe to my YouTube channel. I'll be coming with more videos and making law little easy for you. Okay, so thank you so much. Keep watching, keep learning, and रट के नहीं समझ के पढ़ना. Thank you.